السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ K24 نیوز روم میں آپ کا میزبان سلمان اطہر قاسمی بیجاپور کرناٹک سے۔ ناظرین، جیسا کہ معمول ہے ہمارا کہ ہر جمعہ کو ہم دینی اپڈیٹ کچھ دینی معلومات لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ حسب معمول آج بھی آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور خداوند قدوس کا کلام لے کر کے سامنے حاضر ہوئے۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور تمام ناظرین کو ان باتوں پر پکی اور سچے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ آیت کریمہ کے ذیل میں جو خاص بات، خاص پہلو آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ تو بہت لمبا ہے، بہت لمبا بیان ہے، لیکن مختصر آپ کو بتا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے پر خوش رہتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے برا سمجھا کہ اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں اور یہ بات کہیں کہ گرمی میں لڑائی کے لیے نہ جائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ سخت اور گرم ہے۔ اگر تم میں سمجھ ہے ان کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور بہت روئیں، یہ ان کے فعلوں کی سزا ہے۔ یعنی اب آپ کو سمجھا دوں میں تفصیل کے ساتھ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریم میں نے تلاوت کی، فریح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، اس کے ذیل میں اللہ فرماتے ہیں خاص کر یہ تمام دشمنان اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ غیروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن مسلمانوں میں ہی جن کو منافق کہا جاتا ہے، جو منافق مسلمان ہیں، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ جس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے لیے نکلے اور منافقین نے یہ بہانہ لگا دیا کہ گرمی کا موسم ہے، اس تفتیبی گرم میں اتنی تپش ہے، اس حالت میں ہم کیسے اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ایک وقت مقرر دیا، انہوں نے اس وقت کو ٹھکرایا تو اللہ کا پیغام ان کے لیے آیا ہے۔ جہنم کی آگ سخت تر گرم ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم میں سمجھے ان کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور بہت روئیں، اس لیے کہ ان کے فعلوں کی جزا ہمارے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری صورتوں کو، ہمارے گورے پن کو، ہمارے کالے پن کو، ہماری دولت کو، ہماری غریبوں کو اللہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے فعلوں کو، ہمارے عمل پر اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ اور غرض یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ آخرت کے سامنے دنیا کا کوئی بھی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے اصل آخرت ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات جو دین کے تابع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے منافقین مسلمان کی، اور تاریخ گواہ ہے مسلمان کو اور اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا ہے تو منافق مسلمان سے ہی نقصان پہنچا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور دین کا پہلو بہانے ہزار ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نماز سے لگا کر کے، نیکی سے لگا کر کے، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، پڑوسیوں کے حق ہو، ہمارے پاس بہانے بہت ہیں۔ اور بہانے کون کرتا ہے؟ جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، جس کے اندر منافقین کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ اسلام کے نام پر پھر بہانے تلاش کرتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے۔ مثلا آپ نے کسی سے کہا کہ سود خوری نہ کریں، سود تو حرام ہے بالکل، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کی برابر ہے،
तो बहाना क्या होता है, अरे साहब ऐसा क्यों है, आजकल तो कारोबार बिजनेस के चलते लेन देन करना पड़ता है, सूद बड्डी पे धंधा करना पड़ता है, नहीं चलता है। आपने किसी को कहा कि साहब आप नमाज की पाबंदी करें, तो एक बहाना, कौन सा बहाना, कि साहब पाबंदी नमाज पढ़ता हूं लेकिन पाबंदी नहीं हो पाती, किस लिए कि मुझे ग्राहकों की जल्दी रहती है, कारोबार की जल्दी रहती है, मुझे अपने काम की जल्दी, हजार बहाने मौजूद हो जाते हैं। अलगरज किसी भी दीन के काम के अंदर, फर्ज के अंदर अगर इंसान जानबूझ करके कोई बहाना तलाश करता है, इसे कहते हैं कि उसके दिल में निफाक है। और आपको खास करके बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन कम थे, याद रखिएगा। आज के दौर में कोई हिसाब नहीं है कि कितने मुनाफिक हैं। पता नहीं हमारे दिल का क्या हाल है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने लिए दुआओं में कुछ मांगो ना मांगो, ये जरूर मांगा करो, ए अल्लाह मेरे ईमान को मजबूती अता फरमा। किस लिए फरमाया कि मजबूती अता फरमा कि मेरे ईमान के अंदर कोई निफाक पैदा ना हो जाए। निफाक किसे कहते हैं, मुनाफिक मुसलमान किसे कहा जाता है, जिसके दिल के अंदर तो कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। दिल के अंदर क्या कहता है कि मुझे नमाज से मोहब्बत है, ज़कात देनी चाहिए, ज़कात से मोहब्बत है, हज करना चाहिए, हज से मोहब्बत है, लेकिन जिस वक्त ज़कात का मामला आता है तो दिल उसका सुकड़ना चालू हो जाता है, माल की मोहब्बत सामने आती है, फिर हजार बहाने तलाश कर लेता है कि मुझे ये भी करना था, फुला आदमी बीमार है वहाँ भी पैसा लगाना था, ज़कात दे के क्या करूँगा। मस्जिद का मामला आया कि मस्जिद तो सामने देते रहेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है देने की। फरमाया इसी का नाम है कि दिल के अंदर निफाक का पैदा होना। और कोई भी अमल हम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, दुनिया से पर्दा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई पर्दा नहीं कर सकते। हजरात, मैं आपको बता दूं कि कोई भी अमल होता है वो वक्त पर ही अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होता है। अल्लाह चाहे तो कैसे भी कबूल कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर करा है। ज़कात है, साल में एक बार ज़कात मुकर्रर कर दी तो वक्त पर ही देना बेहतर है। अगर बहाने बहाने तलाश करता है, फरमाया कि खुदा कबूल करे ना करे फिर वो अल्लाह के हाथ है। लेकिन हर अमल का एक वक्त है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ के बाद बताया गया कि वक्त पर नमाज पढ़ो, वक्त पर नमाज पढ़ो। एक इंसान है नमाज ही पढ़ता है, वो ऐसा नहीं कि नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जानबूझ करके वक्त को टाल के पढ़ता है, जबकि उसके पास वक्त मौजूद है। किसी तरह भी वो नमाज पढ़ सकता है जमात की वक्त पर, लेकिन नहीं पढ़ता है, उसके पास बहाने रहते हैं। इन बहानों की वजह से फरमा उसके ईमान की कमजोरी है। और आपको मैं एक वाक़या बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाक़या आपको बता दूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना, अपनी जान को निसार करना फ़ख्र समझते थे, जिन्होंने अपना सब कुछ ला करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिया था। कितने खुश नसीब थे सहाबा इकराम के सुबह से लगा के शाम तक ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक देखा करते थे। मुख्तसर बता दूं, सालबा ऐसे सहाबी हैं जो सहाबा में बड़े नादार गरीब, उनके पास कुछ भी नहीं, ईमान लाए सब कुछ छूट गया, ना घर उनके पास, ना औलाद उनके पास, ना बीवी उनके पास, कोई नहीं, अकेले तने तनहा नादार गरीब मिस्कीन की हालत गुजार रहे। और असहाबे सुफ़ा में शामिल है। असहाबे सुफ़ा उनको कहा जाता था जिनके ना खाने का इंतज़ाम ना रहने का। एक चबूतरा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर उनका क़याम करवा दिया, वो वहीं पर रहा करते थे। कुछ माल सदक़े का या कोई माल ऐसा हदियातन आता था तो फरमाया कि वो माल असहाब सुफ़ा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिला दिया करते थे, उनका इंतज़ाम किया करते थे। अगर सदका है तो उनको दे दिया करते थे, और अगर वो हदिये के तौर पर कहीं से आया पेश हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उस खाने में शिरकत किया करते थे। अलगरस एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे, सालबा रजी अल्लाह बड़ी मुद्दतों से सोचा करते थे। हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह के रास्ते में खैरात करते हुए देखते थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखते थे, सहाबा इकराम को देखते थे कि लाखों करोड़ों ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में देते हैं और वह अल्लाह के रास्ते में खैरात करते हैं। मैं सालबा नादार गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे एक अरमान है, अल्लाह मुझे भी दौलत दे दे, मैं भी खूब अल्लाह के रास्ते में खैरात करूँ। अलगरस
सालबा रजी अल्लाह एक दिन चिमट गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस से और रोकर के कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी बात को अल्लाह कभी नहीं टालेंगे। मेरे दिल में अरमान है, आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे दौलत दे दे तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में खूब लुटाया करूँगा, खूब अल्लाह के रास्ते में दिया करूँगा। नाज़रीन, आपको बता दूँ, बहुत लंबी बात है, मुख्तसर यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा के लिए हाथ उठा करके दुआ की और यूँ फरमाया, ए अल्लाह आप दुआ के ऊपर गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया दुआ के लिए? नहीं कहा मेरे सालबा को, मेरे साहबी को दौलत दे दे, बल्कि क्या कहा, ए अल्लाह आप गवाह हैं, सालबा वादा कर रहे हैं कि मैं अल्लाह के रास्ते में खैरात करूंगा, ज़कात दूंगा, सब कुछ करूंगा। ए अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ करता हूँ, अल्लाह सालबा को दौलत अता फरमा दे। अलगरस नबी की दुआएं थी, मजाक नहीं, किसी और की दुआएं नहीं थी, किसी दरगाह वाले की दुआएं नहीं थी, किसी सुन्नी की दुआएं नहीं थी, किसी मौलाना की दुआएं नहीं, बल्कि ये दुआएं खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। इधर दुआ करनी थी, फरमाया महीनों भर में ही अल्लाह पाक ने सालबा रजी अल्लाह को इतनी बड़ी दौलत दी। फरमाया कि दूर दूर तक जंगलात में सालबा के जानवर नजर आते थे, बकरियां, भेड़, दुम्बे, ऊंट, हजारों अल्लाह पाक ने दौलत दे दी, जानवर इतने हैं। फरमाया एक साल गुजर गया, एक साल जिस वक्त गुजरा दौलत के ऊपर, एक साल में ये हालत पेश आई कि साल बाद जो 24 घंटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और पूरा दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करते थे, पहले शुरू में आना कम हुए और इसके बाद साल जैसी ख़त्म होने के करीब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से महरूम हो गए। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पुलिस वालों को जो ज़कात वसूल करते थे, दो सहाबा को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ और जाकर के सालबा से ज़कात वसूल करके लाओ। अलगरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो सहाबी को वहां पर भेजा, नाज़रीन वक्त कम है, इंशाअल्लाह ताला सालबा रजी अल्लाह ताला अनुमा की इस वाक़िया से और अमल हमारा वक्त पर होना चाहिए, इसी मौजू को लेकर के आइंदा जुमा फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। असल में मुद्दा ये लेकर के आया हूँ कि हमारा कोई भी अमल है तो वक्त पर होना चाहिए, वक्त का अमल अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल होता है। सालबा रज़ी अल्लाह के वाक़िया इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।